Jai Shri, Namaste, and welcome to everyone here. Thank you very much for joining us on this Saturday. And it means a lot to all of us that you're all here with us right now. And in case any of you are newly joining us today, and this happens to be the first time that you're attending any of these sessions, welcome. And welcome to all those people who will watch this session maybe in the future as well. Just to quickly introduce myself, my name is Vikram Shastri and I represent Vedic Sadhana Foundation, a non-profit created by the visionary and guiding light Sri Om Swamiji. And Om Swamiji's aim of creating VSF is primarily to revive Vedic practices and make it accessible, especially the practices in the comfort of our hands, typically through our mobiles using apps that are out there. Those of you who are already with us using the apps, you already know about us, and we thank you very much for your support. We are here because of you. And those of you who are yet to try out our apps, today is a good day. Please go ahead, install Tantra Sadhana app or any of our other offerings that are there and give it a try. You will understand what it means and what I'm talking about. Well, we have a very interesting session lined up for you today. And to kind of set the context, I am basically representing you all of you sadhaks, users of our apps, write to us very commonly in our through email, through comments, through WhatsApp, and ask a number of questions that plague the mind of any sadhak, any seeker who is walking the path of sadhana. Now, many a times we do read the answers, but then when it comes from an authoritative source, we feel much better. And the whole idea of having these kind of sessions is to help us go deeper into the practice of our sadhana so that these questions that bubble up in our minds don't act as blockers. So, what we have done today is to collate your questions. And please note, we will be starting the session very soon, and there will be a lot of you who will be happy. The session will be in Hindi. मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, so you will have to please excuse me. I will try my best to speak in Hindi as well. Having said that, we have collected your questions and we will be posing this to none other than Brahmachariji and Brahmachariji Parak Om, who is the disciple of Swamiji and who has been a Tantra Upasak. And we will try to not only understand more about Tantra, but also a little bit of behind the scene, like they say, BTS moments, behind the scene jhalak of Brahmachariji's life and his learnings, and a lot about Swamiji's teachings as well. So I'm going to play the role of a sadhak, trying to take your questions and pose it to Brahmachariji. And we will go through the curated questions first. And there are multiple sections to this discussion podcast that we will be having, and or rather this conversation. And at the end, we also have a Q&A where your questions that you would have posed in YouTube comment section, will take that up also. So without further ado, let me invite Brahmachariji. Brahmachariji, Jai Sri, welcome. Thank you so much for giving us your time today. Thank you so much, Vikram. Hope I'm audible enough. Yes, Please let me audible. know. Yes, you're very much audible, Brahmachariji, and looking wonderful as well. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू विक्रम। आपने मुझे वास्तव में 2 साल पहले का चित्र जो है वो याद दिला दिया कि जब मैं पहली बार पॉडकास्ट पर गया था, जब मैंने पहली बार आई स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट माय ओन जर्नी। आई होप कि मैंने 2 साल पहले जो गलतियां की थी वो आज मैं ना करूं, विद ग्रेस ऑफ स्वामी जी। सो लेट्स बिगिन with a beautiful stuti of Guru, and we'll invoke Devi Ma first, and then we'll move ahead with the session. Om गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंतर्मन में विराजमान माँ आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी दिव्य प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। इदम गुरवे इदम नमः। नारायण नमोस्तुते। यस विक्रम। Thank you, Ramachariji. So let's begin. So section one is a little bit to know more about your personal story and personal journey. आपका जर्नी कैसा रहा है till now. So just let us know a little bit about how your spiritual journey began, Brahmachariji. Was it gradual? Was it sudden? Please let us know. सो बहुत सालों पहले की बात है। व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड, मैं जब 12 साल का था, उस समय पर मेरे जीवन में एक शिक्षक का प्रवेश हुआ। एक टीचर आए जो कहीं ना कहीं अपनी उपासना में, अपनी साधना की यात्रा में बहुत आगे थे। उनका नाम था रवि त्रिवेदी। अ, और गुजरात के ही रहने वाले थे और लंदन जाकर बसे हुए थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी साधनाएं की थी और देवी माँ के बहुत बड़े उपासक रहे। उनका पहली बार मेरे यहाँ पर आना हुआ घर पर, और उन्होंने मुझे सबसे पहले जो किताब दी वो थी दुर्गा सप्तशती। और दुर्गा सप्तशती से उन्होंने मुझे कुछ कुछ विधि विधान, कुछ मंत्र जो है, कुछ स्तोत्र जो है, वो टिक मार्क करके दे दिए कि आपको इतना 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 डेली करना है। उस समय पर मुझे ये नहीं पता था कि इन स्तोत्र का अर्थ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्गला स्तोत्र हो गया, या फिर वेदोक्त रात्रि सुक्तम, तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, देवी कवच, अथर्व शीर्षम और नवान मंत्र। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि वास्तव में नवान मंत्र किसे कहते हैं। मैं पूरा जीवन लगातार, शायद हो सकता है कि 10 साल तक मैंने एंग्रिंग क्लिंग चामुंडाई विच्चे का जप किया। एंड मैंने आई थिंक 19 ईयर्स ओल्ड, मैं जब 19 साल का था, उस समय पर मुझे पता चला कि मैं जिस मंत्र का पिछले इतने सालों से जप कर रहा हूँ, वो वास्तव में नवान मंत्र के नाम से जाना जाता है। तो मैंने उनके कहने के ऊपर, सिर्फ उनकी बात को रखने के लिए ये जब करना शुरू किया, ये सारा जो एक विधि विधान है वो करना शुरू किया। उद्देश्य केवल एक ही था कि मुझे माँ की उपासना करने में बड़ा आनंद आता था। ये नहीं था कि मैं संस्कृत भाषा में महारत हासिल कर चुका था, या फिर मुझे सारे अर्थों के बारे में पता होता था, या फिर जिस स्तोत्र का मैं पठन कर रहा हूँ उसका अर्थ मुझे पता होता था। कुछ भी नहीं था ऐसा। ट्रस्ट मी, इट वॉज एक ऐसा ही सिनारियो था जहां पर मुझे सिद्ध कुंजिका, चाहे मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं देवी अथर्वशीषम पढ़ रहा हूँ, मुझे आंखों में अश्रु आते थे, मुझे आनंद आता था, और उसी एक कारण से मैं उसे पढ़ता था। ऐसा भी नहीं था कि मेरी दीक्षा हुई थी, क्योंकि कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि नवान मंत्र के लिए या फिर अन्य कोई भी तांत्रिक मंत्रों के लिए दीक्षा की आवश्यकता है या नहीं। तो सबसे एक उत्तर जो मैं दे सकता हूँ, अपना अनुभव जो आपके साथ यदि मैं शेयर करूँ, तो इतना ही होगा कि यदि आप मन में पूर्ण भाव के साथ, समर्पण के साथ केवल देवी माँ को पुकार रहे हैं, तो मंत्र चाहे कोई भी हो, चाहे वो वैदिक हो या फिर वो तांत्रिक हो, तो दीक्षा की आवश्यकता कदाचित नहीं रहती। उसी एक आधार पर मैंने 15 साल तक लगातार इस एक मंत्र का जप किया, और यही साधना जो है वो मेरी रही। प्रत्येक नवरात्रि में मुझे आज भी याद है, सुबह 3 साढ़े 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, और 4 साढ़े 4 बजे देवी माँ की स्तुति करने के लिए, उनकी साधना करने के लिए बैठना। और साधना में भी बहुत लंबा चौड़ा कोई विधि विधान नहीं था मेरे पास। दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पठन करना, उसका रिसाइटेशन करना, वही मेरी साधना थी नवरात्रि की। मुझे ये एक चीज आती थी, और ये एक ही चीज जो है वो मैंने लगातार 15 सालों तक की। चाहे मैं स्कूल में रहा, चाहे मैं कॉलेज गया, चाहे मैं यूनिवर्सिटी गया फिर बाद में, चाहे मैंने अलग अलग जगहों पर रहकर, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में रहकर पढ़ाई की या फिर काम किया, एक ग्रंथ, एक देवी माँ, एक मंत्र मेरे पास 15 साल तक लगातार रहा। एंड उसके बाद एट द एज ऑफ 27 आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोज ऑफ स्वामी जी। 26 27 साल की उम्र में मैंने स्वामी जी को पहली बार देखा, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रही, क्योंकि स्वामी जी का जीवन में आगमन ही श्री विद्या के वीडियो के माध्यम से हुआ।
तंत्र साधना ऐप में अपने आप में श्री विद्या उपासना जो है, श्री यंत्र पूजन, वो दिया गया है, और कहीं ना कहीं पंचदशी मंत्र भी वहां पर उपस्थित है। स्वामी जी के द्वारा उसी मंत्र में दीक्षा भी दी जाती है। तो बेसिकली मैं बुक्स लिखता था, और अभी भी लिखता हूँ, लेकिन उस समय पर मैं जिस पर्टिकुलर बुक को लिख रहा था उसके लिए मुझे श्री विद्या के बारे में जानने की आवश्यकता थी। और केवल रिसर्च बेस पर मैं वीडियोस देख रहा था, पुस्तकें पढ़ रहा था, ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था, ताकि मैं जो लिखने जाऊं उसमें एकदम परिपक्वता पूर्ण जो है बातें आलेखित हो। और सिर्फ परिपक्वता ही नहीं, वास्तविकता हो, सत्यता हो, और एक गहन उसमें अध्ययन जो है वो दिखाई दे लोगों को। तो उसी एक आधार पर मैं श्री विद्या के अलग अलग वीडियोस देख रहा था, ग्रंथ पढ़ रहा था, और उसी में मुझे स्वामी जी का एक श्री यंत्र का वीडियो जो है मेरे सामने आया यूट्यूब के ऊपर। वो वीडियो आज भी है, 2 पार्ट्स में है। स्वामी जी वहां पर श्री यंत्र के 9 आवरण को समझा रहे हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, त्रैलोक्य मोहन चक्र से लेकर सर्वानंदमय चक्र तक की जो पूरी यात्रा होती है साधक की, उसमें उन्होंने उस पर्टिकुलर चीज का वर्णन किया हुआ है। और बस यही, इसी आधार पर धीरे 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 मैं स्वामी जी को अलग अलग वीडियोस के माध्यम से देखता गया, और उनकी किताबें पढ़ी मैंने। इतना जरूर था कि 15 साल में मैं अलग अलग जगहों पर बहुत घूमा, अलग अलग आश्रमों में गया, अलग अलग गुरुओं को सुना, किंतु कहीं पर भी वो जो एक सत्यता का परिचय होना चाहिए, कहीं पर भी जो एक हृदय के गहराई से जो आवाज आनी चाहिए कि ये जो गुरु हैं वही वास्तव में सिद्धात्मा है, और वही वास्तव में प्राप्ति कर चुके हैं, भगवान को देख चुके हैं, वो एक विश्वास, वो भरोसा मुझे पहले कभी नहीं आया था। वो भरोसा पहली बार जब मैंने स्वामी जी को देखा, अ, उस समय पर कहीं ना कहीं हृदय को पता था कि यही वास्तव में जो यात्रा है उसका अंत आ चुका है, यात्रा जो है उसके गंतव्य स्थान तक पहुंच चुकी है, मंजिल तक पहुंच चुकी है। अब इसके बाद कुछ खोजना बाकी नहीं रह जाता। तो देन स्वामी जी के यूनिवर्स में उनका जो अपना एक ब्रह्मांड है, उन्होंने ऐसे फिर खींचा, एक ऐसा चक्र जो है वो आरंभ हो गया उसी क्षण से, कि फिर आज तक वापस मुड़कर नहीं देखना पड़ा। सो दैट्स माय जर्नी इन अ नटशेल। Oh, amazing. Thank you so much, Brahmacharya, for sharing that. And what was your impression, Swamiji, Brahmacharya, when you met Swamiji for the first time? How was that? Is there, if there is anything that you can share there, that would be wonderful. सो इस प्रश्न के 2 एस्पेक्ट हैं, मैं इसका एक फिजिकल एस्पेक्ट ले रहा हूँ। मैं स्वामी जी से जब फिजिकली पहली बार मिला, सटल फॉर्म में कुछ चीजें हो चुकी थी, पर आई डोंट लाइक टू शेयर इट विद पीपल मच ऑफन, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा लोगों को भ्रमित कर सकता है, और मैं नहीं चाहता कि लोग कहीं भी भ्रमित हो। और सभी के अपने अपने अनुभव होते हैं, सभी का अपना अपना सत्य है। तो स्वप्न का जो अनुभव था मेरा, वो मैं अभी नहीं शेयर कर रहा। पहली बार मैंने स्वामी जी को देखा यहाँ पर आश्रम में, 2023 में। तो बेसिकली मैं 2022 में आना चाहता था, श्री सुक्तम साधना होने वाली थी जो माँ कमलात्मिका की साधना है, और देवी माँ ललिता की मूल साधना से पहले श्री सुक्तम साधना जो है वो नितांत आवश्यक मानी गई है। किंतु कुछ कारणों की वजह से मैं श्री सुक्तम साधना नहीं कर पाया यहाँ पर 2022 में, ड्यू टू माई हेल्थ कंडीशंस। 2023 में मुझे याद है कि एक इवेंट था जिसका नाम था मैजिक ऑफ न्यू बिगिनिंग। यानी कि जो नए लोग हैं, जो नए, चाहे शिष्य हो या फिर जिन्होंने कभी स्वामी जी को पहले देखा ना हो, उनके दर्शन ना किए हो, उनके सत्संग का लाभ ना लिया हो, उन लोगों के लिए वो डिस्कोर्स जो है वो रखा गया था, वो इवेंट पर्टिकुलर रखी गई थी। 5 जनवरी से लेकर 9 जनवरी 2023 तक वो इवेंट चलने वाली थी, और मैं और मेरे पिताजी यहाँ पर आए थे पहली बार। बहुत ही मुझे हंसी आती है आज उस बात को याद करके, क्योंकि मैं जब आया 5 जनवरी को शाम को, तो जो यहाँ पर बद्रिका आश्रम में आ चुके हैं उनको ज्ञात है कि ये जो रास्ता है यहाँ तक पहुंचने का, वो बहुत ही दुर्गम है, पहाड़ों के बीच से, बहुत लंबे समय के बाद, और एकदम कठिनाइयों को पार करके फिर यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। तो एक भक्त की, एक श्रद्धालु की, एक उपासक की वास्तव में परीक्षा जो है वो यहाँ पर पहुंचने से पहले ही शुरू हो जाती है। और मेरी हेल्थ कंडीशन कुछ ऐसी थी कि जिसके चलते यहाँ पर पहुंचने के बाद मुझे लगा कि भगवान, एक बार आपने बुला लिया, अब हो सकता है कि दूसरी बार यहाँ पर आने की हिम्मत मैं ना जुटा पाऊं। तो मैंने पिताजी से कहा कि हो सकता है दूसरी बार मैं नहीं आ पाऊंगा यहाँ पर।
पिताजी ने भी यही कहा, उनका भी यही रिएक्शन था कि वास्तव में बात तो सही है, क्योंकि इस रास्ते पर से आना इस कंडीशन में, इस हेल्थ के चलते पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 5 जनवरी को ये हमारी कन्वर्जेशन होती है, और शाम को मंदिर में आरती के समय पर मैं जाता हूँ भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान श्री हरि का सुंदर विग्रह है यहाँ पर। उनके दर्शन के बाद आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग। 45 मिनट तक मैं केवल रोया हूँ यहाँ पर मंदिर में। 6 जनवरी को स्वामी जी का पहला डिस्कोर्स होने वाला था, इन द इवनिंग अराउंड 6:30 PM। मैं यहाँ पर आकर बैठा, और मंदिर में उस समय पर डिस्कोर्स हुआ करता था। स्वामी जी श्री सुक्तम से उनका जो है आगमन होता है, उनका जो एक स्वागत है वो श्री सुक्तम से यहाँ पर किया जाता है। श्री सुक्तम का सुंदर एक स्वर जो है वो बैकग्राउंड में गूंज रहा था, और उसी के ताल के ऊपर, उसी के स्वर के ऊपर स्वामी जी ने प्रवेश किया मंदिर में। फॉर मी इट वॉज लाइक उद्यत भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता, राग स्वरूप पाषाढ़ क्रोधाकारा अंकुशोज्ज्वला। कि जैसे 1000 सूर्य, और वो भी सूर्योदय के समय का जो सूर्य होता है, वो वाला सूर्य जहां पर जो तेज होता है वो अपार होता है, उनका जो एक, उनकी आभा है, उनका जो रेडियंस है वो अपार होता है। वैसे 1000 सूर्य जैसे चलकर आ रहे हो, और साक्षात जैसे माँ स्वयं राजराजेश्वरी का आगमन हुआ हो, वो माहौल मेरे हृदय में, वो कंपन मेरे हृदय में पैदा हुए थे। और बहुत ही सुंदर बात मुझे अभी भी याद है लगी, कि मैं 15 साल से जिन माँ की उपासना कर रहा हूँ, मैं वास्तव में जिनको पूज रहा था, उस समय पर मुझे लगा कि ये वही है। तो कहीं ना कहीं उस समय पर मेरी फीलिंग, जब मैंने पहली बार स्वामी जी को देखा, वो इतनी ही थी कि मेरी साधना आज संपन्न हो चुकी, अब कुछ बाकी नहीं रहा देखने के लिए, करने के लिए। जिनको मैं पुकार रहा था, बुला रहा था, जिनके लिए मैं भाविभोर हो रहा था, जिनके लिए मेरी अश्रु धाराएं बह रही थी इतने सालों से, अब मैं उनके पास पहुंच चुका। और बस उस डिस्कोर्स के मुझे केवल एक ही स्मृति है, कि जब तक वो डिस्कोर्स चला, 7:15 7:20 तक, आरती संपन्न होने तक, क्योंकि डिस्कोर्स के बाद आरती होती है यहाँ पर, आरती संपन्न होने तक मैं सिर्फ और सिर्फ रो रहा था, और बहुत ही अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, ताकि मेरी आवाज जो है रोने की, वो बाहर ना जाए और लोगों को कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। तो मुझे कुछ भी याद नहीं, उस सत्संग में लोगों ने क्या प्रश्न पूछे, स्वामी जी ने क्या जवाब दिया, वो बाद में जब मैंने देखा तब मुझे पूरा पिक्चर जो है वो क्लियर हुआ। पर दिस वाज माय इनिशियल, माय वेरी फर्स्ट रिएक्शन व्हेन आई had a darshan of Swamiji for the very first time. Thank you so much for sharing that, Brahmachariji. That was very nice. So, Brahmachariji, a question often comes, like, as a sadhak, like I'm talking about myself as well, I feel that, maybe I'm not pure enough when I hear of other people's accounts that, somebody like yourself as well, where you are actually doing some chanting when you're from a young age. And now maybe I have not done all that. So, can I even tread the path of this spirituality, this divine path, now, even after so many decades have passed? यहाँ पर विक्रम, ये प्रश्न इसलिए बहुत ज्यादा मुझे एप्ट लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे साधकों के दिमाग में यही चीज चल रही होती है। वो इतने ज्यादा गिल्ट से भरे हुए होते हैं, इतने ज्यादा अपराध बोध से भरे हुए होते हैं, कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं रोजमर्रा के जीवन में यहाँ पर आश्रम में इतने लोगों से मिलता हूँ, कई बार इतना रो रो कर वो कह रहे होते हैं कि मैंने इतने पाप कर दिए, मैं इतना अशुद्ध हूँ, मैं इतना अपवित्र हूँ। समझने की बात यह है कि आप अपवित्र या फिर अशुद्ध किसे मान रहे हो, क्योंकि शरीर हो सकता है अशुद्ध, मन हो सकता है अशुद्ध, लेकिन आत्मा जो परमात्मा से आई है, जो उसका ही अंश है, वो कैसे अशुद्ध हो सकती है ना। जिस परम चैतन्य की हम बात कर रहे हैं, जिस सुप्रीम कॉन्शियसनेस की हम बात कर रहे हैं, वो कैसे अशुद्ध हो सकती है। इट इज लाइक दिस कि अ, अगर हम पानी ले, पानी में मिट्टी डाल दे, तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरा पानी जो है वो दूषित हो गया। उसे शुद्ध करने भी की एक टेक्निक होती है अलग से। उस पानी को फिर से एक बार नितांत शुद्ध किया जा सकता है, परम शुद्ध किया जा सकता है।
केवल उस मिट्टी को हम हटाना सीख लें, उस मिट्टी को दूर करना यदि हम सीख जाए, तो वो पानी फिर से पीने लायक हो ही जाता है। और वो टेक्निक बाष्पीभवन की होती है, इवेपराइजेशन की होती है, जिसके माध्यम से हम पानी को शुद्ध कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं साधना का जो एक मार्ग है, वो शुद्धि का मार्ग है। और शुद्धि के मार्ग पर चलकर ही आप जो परम शुद्ध है उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो कभी भी मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना अशुद्ध हूं, मैं इतना ज्यादा अलग अलग चीजें करके आया हूँ, मेरे मन में इतने विकार हैं, मेरे मन में इतने बुरे ख्यालात आते हैं, खरे बुरे विचार आते हैं मेरे मन में, और इतनी नकारात्मक वृत्तियों से मैं भरा हुआ हूं, मैं कैसे देवी माँ की या भगवान की साधना कर पाऊंगा। यहां से ही शुरुआत करनी होगी कि यदि इस विचार को पहले नहीं छोड़ेंगे, यदि शुरुआत नहीं करेंगे, कहीं से तो चलना शुरू करना होगा। यदि हमें किसी एक स्थान पर पहुंचना है, मान लीजिए मुंबई पहुंचना है, और सिर्फ हम सोचते रहें कि जब मैं एकदम बढ़िया तरीके से वहां पर पहुंच पाऊंगा, मैं जब चलना शुरू करूंगा, मैं अपने समय के आने पर अपने कन्वीनियंस के अनुसार मैं वहां पर पहुंचूंगा, तो फिर हो गया काम। अगर आपके पास साधन नहीं है, अगर आपके पास सुविधा नहीं है मुंबई पहुंचने की, तो आप केवल ये सोचकर घर पर बैठे रहे कि जब साधन होगा तब मैं चलना शुरू करूंगा, तो बात ही खत्म हो गई। भगवान ने दो पैर दिए हैं, दो हाथ दिए हैं, एक सक्षम शरीर दिया है, सामर्थ्यवान मन दिया है। तो यदि यात्रा में चलने की शुरुआत करी धीरे धीरे धीरे, तो एक समय आने पर वो डिस्टेंस जो है वो कम होता ही जाएगा। और फिर भी यदि हम समझना चाहते हैं कि वास्तव में इस यात्रा में बिना रुके कैसे चल पाए, तो एक ही उसका उपाय है। कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पर आप दौड़ पाएंगे, कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पर आप जॉगिंग कर पाएंगे, कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पर आप वॉकिंग कर पाएंगे, कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पर आपको एक छोटे से बच्चे की तरह दो हाथ और दो पैरों को जमीन पर रखते हुए रेंगना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। तभी जाकर वो जो अंतर है, वो जो डिस्टेंस है, वो कम होता रहेगा। यदि केवल अपने आप को दोषित मानकर, अपने आप को दूषित मानकर, अपने आप को पापी समझकर, या फिर अपने आप को बुरे ख्यालों से, विकारों से घिरा हुआ मानकर चलना ही शुरू नहीं करेंगे, तो प्राप्ति होगी कैसे? कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। आपको अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो पहले वर्णमाला तो सीखनी होगी। कोई भी इंसान, कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति सीधा ये सोचे कि मैं कल जाकर डॉक्टर बन जाऊं, पॉसिबल नहीं हो सकता। सबका अपना अपना एक आरंभ होता है, सबकी एक शुरुआत होती है। हो सकता है किसी व्यक्ति ने पहले शुरुआत कर ली हो, एट द एज ऑफ 5, 6, 10, 12, 15। हो सकता है कुछ व्यक्ति बाद में जाकर अपना कार्य जो है वो शुरू कर पाए। एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति का उदाहरण मुझे याद आ रहा है, के.एन. पणिक्कर। एक संस्कृत विशेषज्ञ हुए, संस्कृत एक्सपर्ट, जिन्होंने बहुत सारे प्लेस लिखे, और आज भी उनका नाम जो ड्रामा फील्ड है, जो थिएटर है, उसमें बहुत ही आदर भाव के साथ, सम्मान के साथ लिया जाता है। के.एन. पणिक्कर ने 45 वर्ष की आयु में, एट द एज ऑफ 45, ही स्टार्टेड लर्निंग संस्कृत। इमेजिन, संस्कृत जैसी भाषा जिसे हम अत्यंत कठिन मानते हैं, उसमें वो व्यक्ति जो है वो विशेषज्ञ बनते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं। लोगों को लग सकता है कि क्या रे, उन्होंने तो कितने पहले और कितने बचपन में, कम आयु में शुरुआत कर दी होगी। नहीं, एट द एज ऑफ 45 ही स्टार्टेड लर्निंग संस्कृत। 45 वर्ष की आयु में सीखना शुरू करने के बाद धीरे 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 उसमें उन्होंने इतनी महारत हासिल कर ली कि आज की तारीख में पूरे भारतवर्ष में जहां पर थिएटर नाम आता है, जहां पर भी प्लेस की बात होती है, जहां पर भी संस्कृत भाषा के विशेषज्ञ की बात होती है, वहां वहां पर के.एन. पणिक्कर का नाम आता ही आता है। सो दैट्स माई ओनली आंसर, कि अगर आप केवल ये सोचकर आगे नहीं बढ़ेंगे कि मैं अपवित्र हूँ, मैं भगवान को पुकारने के लिए लायक नहीं हूँ, चाहे कोई भी बच्चा बाहर जाकर कितना ही गंदा होकर क्यों ना आए, कि कोई भी संतान, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, वो चाहे कीचड़ में अपने आप को धुल कर ही क्यों ना आए, किंतु जब वो घर पर पहुंचती है ना, तब उसी बच्चे को उसकी माँ जो है वो इतने प्यार से नहलाती है, इतने प्यार से साफ करती है। वो कभी ये नहीं सोचती कि अब मेरा बच्चा जो है वो हमेशा हमेशा के लिए गंदा हो चुका है, अब इसे मैं प्यार नहीं करूंगी।
तो यहाँ पर तो हम जगत जननी की बात कर रहे हैं, जगत पिता की बात कर रहे हैं, वो हमसे प्यार करना कैसे छोड़ सकते हैं? चाहे हम माया रूपी कीचड़ में कितना ही अपने आप को लिप्त ना पाए, अपने आप को कितना ही हम उस दूषित भाव के साथ, अपराध बोध के साथ ना देखें, किंतु देवी माँ और भगवान के लिए हम आज भी उतने ही शुद्ध हैं, क्योंकि हम उनके ही अंश हैं। उसी परमात्मा से ये जीवात्मा जो है वो अलग हुई है। Thank you so much, Brahmachari ji. On a lighter note, I am 45 years old, so I still have hope now that I can also walk this path in a deeper way, even if I start now. Um, just one or two more questions, Brahmachari ji, before we go into the next section of demystifying Tantra. So, one more question, just to, the behind the scene kind of a question is, can you share any one teaching of Swamiji that really helped shape your sadhana personally, Brahmacharya ji? चरई वेति चरई वेति, यानी कि चलते रहो, एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। तो एक स्वामी जी, एक सेंटेंस पर्टिकुलरली बहुत बार उन्होंने प्रवचन में इसका उल्लेख किया है। जपेत सिद्धि, जपेत सिद्धि, जपेत सिद्धि भवेत। यानी कि जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए। यदि जपते रहेंगे, यदि अपनी यात्रा में रुकेंगे नहीं और थमेंगे नहीं, केवल आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे जैसे भी आगे बढ़ पाए, धीरे धीरे बढ़ पाए, फास्ट कई बार गति हो जाए, किंतु यदि चलते रहेंगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब मंत्र की सिद्धि जो है वो प्राप्त हो जाएगी। सिद्धि का अर्थ है यहाँ पर प्राप्ति से। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जहां पर आप प्राप्ति कर ही लेंगे। तो मुझे हमेशा से एक ही चीज लगती है कि पहले का एक समय था, आज से 10 साल पहले का, जब मैं नीचे बैठकर साधना नहीं कर पाता था ड्यू टू माई स्पाइन की कंडीशन। तो मैं फिर भी रुका नहीं। मैं हर बार ये किस्सा जो है वो सुनाता हूँ कि जिस समय पर मैं नीचे बैठकर साधना नहीं कर पाता था, उस समय पर मैंने कुर्सी पर बैठकर साधना की। कुछ क्षण ऐसे भी थे जहां पर मैं कुर्सी पर बैठकर भी साधना नहीं कर पाता था। उस समय पर मैंने लेटकर, अपने बिस्तर पर लेटकर साधनाएं की हैं, और बहुत सारी साधनाएं मैंने बिस्तर पर लेटकर की हैं। किंतु एक ही बात मेरे अपने दिमाग में मैंने बसा कर रखी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हेल्थ की कंडीशन कैसी भी हो, चाहे आसपास की परिस्थितियां कैसी भी हो, मुझे साधना करने से नहीं रोक सकती। और मुझे एक बहुत सुंदर चीज याद आ रही है, जो पिछला एक क्वेश्चन था उसके साथ कनेक्टेड है। एक बार मुझसे साधना में बहुत बड़ी गलती हो गई, और वो गलती इतनी बड़ी थी कि शायद माफी के लायक नहीं थी, और ये कुछ ही महीनों पहले की बात है, जो मेरी अपनी साधना चलती है उसमें। पर देवी माँ की कृपा ये रही कि मैंने अपने गुरु को, स्वामी जी को, मैंने सामने से जाकर वो बात बताई कि स्वामी जी, मुझसे ये गलती हो गई है, मुझसे ये अपराध जो है वो हो चुका है, अब मैं इसे कैसे सुधारूं? ये विधि विधान जो है उसमें मुझसे ये गलती हो गई। क्या मुझे ये साधना वापस करनी चाहिए? क्या मुझे पूर्ण जो मैंने लघु महापुरुष चरण किया था वो फिर से मुझे एक बार शुरू करना चाहिए? मंत्र बहुत लंबा था, उसके लिए समय भी बहुत ज्यादा मेरा लगा हुआ था, बहुत महीने मेरे उसमें गए थे उस साधना में। लेकिन मैं तैयार था कि यदि गुरु के मुख से ये वचन निकलेगा कि नहीं, आपको फिर से एक बार ये साधना करनी है, तो मैं वो दंड भुगतने के लिए तैयार रहूंगा। और मैंने उनसे कहा भी था कि स्वामी जी, आप कोई भी यदि दंड देना चाहते हैं मुझसे, तो आप प्लीज मुझे दे दीजिए, मुझे वो स्वीकार्य होगा। मुझे प्रायश्चित का एक मौका दीजिएगा। और उस समय पर उन्होंने मुझे एक ही चीज कही कि क्योंकि आपने मुझे सामने से आकर अपनी गलती स्वीकार कर लिया, आपने ये मान लिया कि हाँ, मुझसे ये अपराध हुआ है, इस कारण से मैं आपकी वो गलती जो है वो माफ करता हूँ, और आपको ये अनुष्ठान फिर से एक बार करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यदि हम जानते हैं कि मुझ में ये कमियां हैं, यदि मैं जानता हूं कि मुझे इस चीज को टारगेट करना है, मुझे ये कमी दूर करनी है अपने भीतर से, मुझे नकारात्मक विचारों को दूर करना है, विकारों को दूर करना है, वृत्तियों को दूर करना है, और केवल हम उस रियलाइजेशन के साथ चलते रहेंगे, तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप अपने अंतर मन को पूर्णतया शुद्ध पाएंगे। तो यही एक सीख जो मुझे स्वामी जी के पास से निरंतर प्राप्त होती रही, कि चाहे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, उसका स्वीकार भाव अंदर होना चाहिए, उसका एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है,
उस बात का यदि जरा सा भी अहंकार रखते हुए आप चलते हैं तो आपकी यात्रा वहीं पर ठहर जाती है। बिना अहंकार के आपको मान लेना चाहिए कि मैं एक बहुत ही गलती करने वाला जीव हूं और मुझसे गलतियां होती रहेगी, किंतु मैं आगे बढ़ता रहूंगा, और जब जब मुझसे गलती होगी, जब जब मुझे रियलाइज होगा उस अपराध का, मैं तुरंत ईश्वर से जाकर क्षमा मांग लूंगा। और जिनसे मैंने वो गलती की है, जिनके प्रति मैंने वो एक गलत कदम उठाया है, उनसे जाकर मैं क्षमा मांग लूंगा। सो दैट्स द ओनली थिंग दैट जो मेरे दिमाग में हमेशा रहती है जब भी मैं साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता हूँ, कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक्सेप्टेंस और रियलाइजेशन होना चाहिए अपनी गलतियों के बारे में। Thank you for sharing that, Brahmachariji. So I think there were many questions that I had to pose, but you have already answered some of them through this whatever you shared. Thank you so much for that. So let's go to the next section, Brahmachariji, to demystify and understand a little bit more about Tantra. Many of the viewers here, part users of Tantra Sadhana app, and maybe many people, many more people in the future will be looking at this video and trying to understand more about Tantra. So let's start with what is Tantra itself, Brahmacharya in simple modern terms, maybe. मैं इसके लिए एक बहुत ही अलग सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आप एक मान लीजिए टीवी सेट, एक टीवी सेट को आप विजुलाइज कर लीजिए, कल्पना कीजिए। एक टीवी आप घर पर ला रहे हैं, एलईडी टीवी, और वो टीवी जो है उसे तंत्र मान लीजिए, एक प्रणाली, एक सिस्टम। बेसिकली तंत्र का यदि कोई इंग्लिश वर्ड है तो वो है सिस्टम, प्रणाली, हिंदी वर्ड उसका। उस टीवी के साथ जो वायर हम लाते हैं, जिसे हम प्लग में एंटर करते हैं, उस प्लग को, उस वायर को आप मान लीजिए यंत्र। क्योंकि यंत्र जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हो। और जब आप उस प्लग को, उस वायर को सॉकेट में डालते हैं, जब स्विच ऑन करते हैं, उस स्विच को आप मान लीजिए मंत्र। तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे, यानी कि ये मंत्र का उच्चारण करेंगे और आपका रिसाइटेशन शुरू होगा, मंत्र जपा शुरू होगा आपका, वैसे ही जो देवी माँ की ऊर्जा है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जिसे हम एनर्जी कहते हैं, वो यंत्र से बहना शुरू होगी। यंत्र यानी कि हमारा वायर, टीवी का प्लग, वहां से बहकर वो जो ऊर्जा है वो माध्यम में आएगी, यानी कि प्रणाली में आएगी, टीवी सेट पर आएगी। और उसी के माध्यम से जो पूरा टीवी है, जो सेट है, टीवी सेट, वो चालू हो जाएगा, वो प्रणाली, वो सिस्टम शुरू हो जाएगी, और हम जो देखना चाहते हैं वो देख पाएंगे। सो वो जो टीवी है वो हमारा शरीर है कहीं ना कहीं। वो टीवी, वो सिस्टम है जहां पर एनर्जी फ्लो करती है। मंत्र जपा के माध्यम से, मंत्र चांटिंग के माध्यम से हम उस एनर्जी को अपने भीतर एक्टिवेट कर सकते हैं, उसे इन्वोक कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। तो यही सिंपल मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ तंत्र के बारे में, कि तंत्र बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय बहुत ही सिंपलेस्ट चीज है। कि आप जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो अपने सामने, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट, उस माध्यम को, उस प्रणाली को यदि आप शुरू करना चाहते हैं, उसे पूर्णतया एक्टिवेट करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि वो अपने फुल पोटेंशियल पर काम करे, तो उस पर यंत्र और मंत्र दोनों के माध्यम से पूजन करना नितांत आवश्यक है। और जब दोनों का समन्वय होता है तब तंत्र जो है वो अपने आप में एक्टिवेट हो जाता है, अर्थात एक शरीर जो है वो देवी माँ के भाव में विलीन हो जाता है। तो तंत्र क्रियाओं का कोई दूसरा अर्थ या फिर कोई नेगेटिव अर्थ लेने की बजाय आप केवल इसे एक सिंपल चीज के साथ समझ सकते हैं, कि यदि आप ईश्वर के साथ जीते जी कनेक्ट होना चाहते हैं, यदि आप ईश्वर के भाव में पंच महाभूत के शरीर में रहते हुए रहना चाहते हैं, तो तंत्र क्रियाएं जो है, तंत्र की साधनाएं हैं, वो आपके लिए काम आ सकती हैं। क्योंकि भक्ति क्या कहती है, भक्ति योग क्या कहता है, कि जब कोई साधक ईश्वर को पुकारता है और कहता है कि मुझे मृत्यु के बाद आपकी प्राप्ति हो जाए, मैं आपके लोक पर आ पाऊं, आपके वैकुंठ में मैं समाहित हो पाऊं, वो कहीं ना कहीं भक्ति योग की पराकाष्ठा होती है, चरम सीमा होती है। किंतु जब कोई भक्त, कोई उपासक ये कहे कि मुझे नहीं पता मृत्यु के बाद क्या है, या कुछ है भी या नहीं, मुझे तो जब मैं जी रहा हूं उसी के दौरान आपका साक्षात्कार करना है, आपके दर्शन करने हैं, आपके भाव में लीन होना है, तो ये कैसे होगा? तब जाकर तंत्र साधना जो है वो आपके
लिए कार्यरत होती हैं, और जिसके माध्यम से आप जीते जी पंच महाभूत के शरीर में रहते हुए उस परम शुद्ध तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं. सो दैट्स अ सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ तंत्र. Thank you very much, Ajay. That was a very nice analogy. And you also shared a bit about this, but why is Tantra then misunderstood? People think a black magic hai, taboo hai, negative energies hai, or, if you do something in Tantra, you might attract negativity. And there's a lot of misunderstanding, misconception about this. Why is it like that? Probably the same is not true for other terminologies, other practices. As you said, Tantra is just a system of practice, which if you do the way that is prescribed, we will get kind of deterministic results in a way of going nearer to the divine. And this is one of the systems, one of the practices to do that. But why then is there so much of misunderstanding in the world? And that's why probably that stops anybody from even entering this and doing a practice, this fear of this inadvertently, am I doing something wrong or attracting something negative? दो रीजंस हैं इसके. पहला रीजन ये है कि जब हम किसी चीज के बारे में जानते नहीं होते, जो चीज अंधेरे से घिरी हुई होती है, अंधकार में होती है, उसका भय हमें सबसे ज्यादा लगता है. तो कभी हम ब्रॉड डे लाइट में डरेंगे नहीं. डर इंसान को तभी लगता है जब वो अंधकार में जाए, रात हो, सुनसान रात्रि हो, और उस समय पर जब चंद्रमा बिल्कुल ना हो, अमावस्या की रात हो. तो वो जो रात्रि का अंधकार होता है उसमें इंसान को भय लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ दिख नहीं रहा, उसे पता नहीं है कि मेरे सामने कौन सी चैलेंज जो है वो आने वाली है. तो तंत्र जो है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई कभी. तंत्र जो है उसे गुप्त विद्या के नाम से पिछले 12 वर्षों से लोगों ने रखा. उसका कारण इतना ही था कि जो विदेशी आक्रांता हमारे यहाँ पर आए आक्रमण करने के लिए भारतवर्ष में, उनसे इस सिस्टम को बचाने के लिए, इस प्रणाली को बचाने के लिए, तंत्र साधनाओं को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए इसे गुप्त विद्या करार कर दिया गया. और एक बहुत ही समझ लायक बात यह है कि तंत्र साधना वास्तव में इतनी शक्तिशाली होती है कि एक इंसान यदि अपने आप को पूर्णतया विलीन कर दे, अपने जीवन को समर्पित कर दे साधना के लिए, तो वो पूरे एक नए ब्रह्मांड का निर्माण कर सकता है, रचना कर सकता है. राजम देहि शिरो देहि न देयम षोडशाक्षरी. महादेव ने माँ पार्वती को कहा कि भक्त पर आप प्रसन्न हो जाए तो अपना राज्य जो है वो दे दीजिए, समग्र साम्राज्य जो है वो प्रदान कर दीजिए. यदि फिर भी संतुष्ट ना हो भक्त, तो अपना मस्तक काट कर दे दीजिए, किंतु श्री विद्या का मंत्र मत दीजिएगा. क्यों? क्योंकि उसी मंत्र से वो आपका निर्माण करने के लिए सक्षम हो जाता है. तो कहीं ना कहीं तंत्र साधनाओं में वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो क्षमता है, जिसके चलते एक साधक जो है वो उच्च कोटि की अवस्था में ईश्वर के लगोलग, ईश्वर के समान उसी अवस्था में पहुंच सकता है. उसी निर्माता के स्वरूप में, उसी भूमिका में आकर वो जो चाहे वो कर सकता है. किंतु इसी चीज को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए 12 वर्षों से हमारे जो भारतवर्ष में अलग अलग सिद्ध हुए, महंत हुए, संत हुए, साधु हुए, उन्होंने इसे कहीं ना कहीं एक लॉक लगा दिया इसके ऊपर. इसके ऊपर एक ताला लगा दिया गया और गुप्त विद्या के नाम से करार कर दिया गया. तो पूरा तंत्र शास्त्र जो है वो अंधेरे में लिपट गया. बहुत ही कम लोग ऐसे रहे जिससे इनके बारे में एक नॉलेज थी, ज्ञान था, जो तंत्र साधनाएं करते थे. और जैसे ही तंत्र को गुप्त बना दिया गया, गुप्त चीजों का लोगों को हमेशा से डर लगता है, जैसे कि हमने अंधेरे की बात की. तो इसी कारण से तंत्र के साथ एक धमना जो है वो जुड़ना शुरू हो गया. फिर कुछ कुछ क्रियाएं ऐसी हैं तंत्र में जिसके माध्यम से आप एक जो समाज में रहने वाला व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसे लग सकता है कि ये क्या कर रहे हैं. स्मशान में कुछ क्रियाएं की जाती हैं. कौलाचार साधना में कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो अल्कोहल के साथ, मांस के साथ वगैरह, हड्डियों के साथ वगैरह की जाती हैं. वो कपाल के साथ की जाती है, कापालिक साधना कपाल के साथ की जाती है. तो एक तो मनुष्य को मृत्यु का भय बहुत ज्यादा लगता है, और ऊपर से उसने यदि कपाल देख लिया, कपाल अर्थात स्कल, और स्कल अर्थात जब मृत्यु के बाद आपका शरीर भस्मीभूत हो जाता है, तब पीछे जो एक मस्तक के नीचे का ढांचा बचता है, जो स्ट्रक्चर बचता है, उसे कपाल कहते हैं. अब यहाँ पर देखने लायक बात यह है कि इंसान
हमेशा आवरणों से घिरा हुआ होता है। माया का आवरण उसके ऊपर हमेशा लगा हुआ होता है। वो बिना आवरण की चीज देख नहीं सकता। कपाल के ऊपर कोई चमड़ी का आवरण नहीं होता, कोई स्किन नहीं होती। कपाल नेकेड होता है। आप विचार करके देखिए, क्योंकि इंसान आवरण के बिना अपने आप को देख नहीं सकता था, उसने वस्त्रों का निर्माण कर लिया, उसने क्लोथ्स बना लिए। और कपड़ों के चलते विकारों में और वृद्धि आ गई। कभी पक्षी को देखकर या फिर कोई प्राणी पशु को देखकर हमारे मन में विकार उत्पन्न नहीं होते। हालांकि वो नेकेड ही हैं, वो नग्न ही होते हैं, पूरा जीवन नग्न रहते हैं, और उनके प्रति कभी मनुष्य के मन में विकार उत्पन्न नहीं होता। किंतु दूसरे मनुष्य के लिए उसके मन में जरूर विकार उत्पन्न होगा, क्योंकि वो वस्त्र से घिरा हुआ है, वस्त्र उसने पहने हुए हैं, वो आवरण से घिरा हुआ है। यदि हम बिना आवरण के होते, यदि पहले से मानव सभ्यता में कभी भी वस्त्रों का निर्माण हुआ ही ना होता, तो आज की तारीख में जो एक वासना देखी जा रही है, जो एक लस्ट का माहौल है आसपास, जो अलग अलग प्रकार के केसेस हो रहे हैं, रेप केसेस, वो शायद ना होते होंगे, वो ना ही होते। क्योंकि इंसान ने आवरण लगाना शुरू कर दिया, इस कारण से ये सारे केसेस जो है, ये इस प्रकार की विचारधारा जो है वो बढ़ती चली गई, ये विकार बढ़ते चले गए। एक बहुत ही सुंदर कथा है कि रामकृष्ण परमहंस नित्य प्रतिदिन रात्रि को जाते थे जंगल में साधना करने के लिए। उनके शिष्यों को बड़ा आश्चर्य होता था। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो अपने गुरु की क्रियाओं को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। तो उनके भी कुछ शिष्य ऐसे थे जो नित्य प्रतिदिन देखते थे कि हमारे गुरुजी रामकृष्ण परमहंस जाते हैं जंगलों में साधना करने के लिए, और सुबह होने के बाद वापस आते हैं। एक बार उन्होंने तय किया कि हम जाकर देखते हैं कि कहाँ पर जाते हैं, कौन सी साधना करते हैं, क्या करते हैं, देखा तो जाए, परीक्षा तो ली जाए। शिष्य जो है एक रात्रि को रामकृष्ण परमहंस के पीछे चल देते हैं, और रामकृष्ण परमहंस जंगल में जाते हैं। अपने सारे वस्त्र उतार कर, पूर्णतया निर्वस्त्र होकर, नग्न होकर साधना करने के लिए बैठ जाते हैं, माँ काली को पुकारने लगते हैं। सुबह हो जाती है, शिष्य जो है वो वापस आ जाते हैं, गुरु भी वापस आ जाते हैं। दोपहर को उनके जो शिष्य हैं वो रामकृष्ण परमहंस से पूछते हैं कि गुरुदेव, आप जंगलों में जाकर साधना करते हैं, ये तो ठीक है, किंतु निर्वस्त्र होने का क्या कारण है, ये समझ में नहीं आया मुझे। तब रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि पहले से ही ये संसार जो है वो इतने आवरणों से घिरा हुआ है, हमारे ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारी इंद्रियों के ऊपर, हमारी चेतना के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर इतने आवरण लगे हुए हैं। उसे तो केवल माँ की कृपा से ही निकाला जा सकता है, किंतु एक आवरण ऐसा होता है, वस्त्र रूपी आवरण, जिसे इंसान खुद निकाल कर प्रयास कर सकता है। तो मैं वही करता हूँ कि एटलीस्ट एक आवरण मैं अपनी ओर से, अपने शरीर के ऊपर से निकाल दूं, तो वो उतनी मेहनत तो मेरी कम हो जाएगी अन्य आवरण को निकालने के लिए। तो इतना सा लॉजिक है कि जिस चीज का भय हो, जो चीज गुप्त हो, जो चीज अंधेरे में हो, उसके प्रति लोगों का डर पैदा हो जाता है। दूसरा कारण, यदि आप ऋषि वशिष्ठ की कथा पढ़ते हैं या फिर अन्य प्रसंग पढ़ते हैं कुछ कुछ तंत्र शास्त्रों में, वहां पर पुराने जमाने में जंगलों में लोग रहते थे, खासकर ऋषि मुनि जो है वो जंगलों में रहते थे। और उनको अपनी रक्षा करने के लिए कुछ विशेष प्रयोग के माध्यम से, जैसे कि स्तंभन हो गया या फिर मारण हो गया, उन प्रयोगों के माध्यम से एक घेरा बनाना पड़ता था अपनी कुटिया के आसपास। और प्रयोग ये होता था कि मान लीजिए उन्होंने स्तंभन किया है उस घेरे के भीतर, तो यदि कोई भी जंगली पशु या प्राणी उस घेरे के अंदर आने का प्रयास करे, उस लेयर के अंदर आने का प्रयास करे, उस लक्ष्मण रेखा को लांघने का प्रयास करे, तो उस पशु का स्तंभन हो जाता था, वो जड़ हो जाता था। वो जहां पर है, जिस जमीन पर है, उसी स्थान पर वो जड़वत हो जाता था, स्तंभित हो जाता था। तो इसके चलते स्वरक्षा के लिए जो एक षटकर्म कहा जाता है, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, ये क्रियाएं की जाती थी। किंतु इन्हीं क्रियाओं को फिर आगे जाकर मनुष्य ने लोगों को डराने के लिए, अपना धंधा बनाने के लिए, व्यवसाय बनाने के लिए, कहीं ना कहीं लोगों के डर का फायदा उठाकर पैसे कमाने के लिए षटकर्मों के नाम से तंत्र को प्रचलित कर दिया और लोगों को डराना शुरू कर दिया। तो धीरे 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 समय के साथ षटकर्म जो है वो तंत्र की परिभाषा बन गए।
उसकी व्याख्या बन गए। किंतु यहाँ पर एक ही चीज समझने लायक थी कि षटकर्म तंत्र का एक बहुत ही छोटा सा भाग हो सकता है, तंत्र नहीं हो सकता। तंत्र एक बहुत ही विस्तृत टर्म है। तंत्र जो है वो पूरा ब्रह्मांड है, और षटकर्म उस ब्रह्मांड में चलने वाली एक छोटी सी चींटी है। छोटे से ग्रह पर छोटी सी चींटी जैसे होती है, वैसे ही षटकर्म का रोल उतना ही है। किंतु तंत्र वास्तव में समस्त ब्रह्मांड के समान अपार अफाट, एक निरंतर नितांत विस्तृत होने वाला विश्व है, जिसे कभी सीमा रेखा में बांधा नहीं जा सकता। सो दैट्स वाई लोगों को तंत्र के प्रति इतना डर जो है वो पैदा होना शुरू हो चुका था। Thank you, Brahmachari ji. That reminded me of this one story where a prisoner is asked to choose between two rooms, and one which is completely dark, and the other is where, there is a lion or something. And he chooses the one where there is a lion, knowing fully well that he is going to be eaten, and simply because there is fear of the unknown in the dark room, when in reality, the dark room actually led to his freedom. Uh, Thank you for sharing that, Brahmachari ji. So, Brahmacharya, we know Swamiji has, during his launch, said he has performed all the Dash Mahavidya sadhanas himself. And we know through his memoirs, he has, awakened the divine, if you will. What does he say to be the right mindset when we approach Tantra? If somebody is approaching Tantra for the very first time, because there is all this conditioning that you share, because of this, darkness of ignorance, if you will, of not knowing what this is all about. So, what should be one's mindset to approach Tantra? मैं एक ही चीज कहता हूँ कि जब व्हेन इट कम्स टू तंत्र साधना, व्हेन इट कम्स टू तंत्र साधना ऐप, या फिर जो साधनाएं स्वामी जी ने यहाँ पर दी है, देखिए एक चीज समझनी होगी कि यदि आप वास्तव में अपनी माँ को पुकार रहे हैं, कोई माँ कैसे अपनी संतान को हानि पहुंचा सकती है। जब मैं ये बोल रहा हूं, मुझे पता है कुछ कमेंट्स ऐसी आएंगी, कुछ लोग ऐसे होंगे महानुभाव जो आकर कहेंगे कि ऊर्जा का खेल होता है, और ऊर्जा जो है वो कई बार उससे संभाली नहीं जा सकती, और लोग जो है वो पागल हो सकते हैं ऊर्जा के कारण, उसके कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत हो जाएगी, वो उसे संभाल नहीं पाएंगे। किंतु इसमें से एक भी सेंटेंस में, एक भी विधान में कोई वास्तविकता नहीं है, कभी भी नहीं थी। जो अनुभव स्वामी जी ने किया, जो अनुभव हमारे पूर्व के सिद्धों ने किया, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया, वो कहीं पर भी ये चीज नहीं कहता कि आप यदि कोई साधना कर रहे हैं, कोई ध्यान योग कर रहे हैं, कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, किसी मंत्र के ऊपर आप ध्यान लगा रहे हैं, किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से आपकी ऊर्जा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, या फिर उसके चलते आपके जीवन में खलबली मच जाएगी, या फिर एक अलग प्रकार का वातावरण जो है वो आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगा, आप वैरागी हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे। ये सारी ऐसी भ्रमणाएं हैं जो केवल उन लोगों ने फैलाई जिन्होंने कभी साधना का स नहीं किया, जिन्होंने कभी तंत्र साधना क्या होती है, वास्तव में विधि विधान क्या होते हैं, क्यों किए जाते हैं, वास्तव में इनसे प्राप्ति क्या हो सकती है, इनके बारे में कुछ पता नहीं है जिनको, वो जाकर ऐसी फालतू चीजें बोल रहे हैं ताकि उनके पास अपनी एक ऑडियंस आए, अपने, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है आज के समय में लोगों को समझाने के लिए कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उनके लिए अब आप एक कस्टमर हो, सिर्फ आप एक ग्राहक हो। और ऐसी बात करने का उद्देश्य उनके मन में इतना ही होता है ताकि आपके मन में डर पैदा हो, और आप उनके ग्राहक बन जाओ, आप उनके कस्टमर बन जाओ, और जो चीज वो आपको बेचना चाहे धर्म के नाम पर, तंत्र के नाम पर, वो आप खरीद सको। बाकी वास्तव में जो इंसान साधना के मार्ग पर चलना चाहता है ना, वो इन बहानेबाजी में नहीं पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान में रखता है कि मुझे अपनी माँ तक पहुंचना है, मुझे अपने भगवान तक पहुंचना है, और इसके लिए मुझे कोई दलाल की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल और केवल एक सत्य के मार्ग पर चलना है, भक्ति के साथ चलना है, समर्पण के साथ चलना है, और वही मेरे लिए पर्याप्त होगा। स्वामी जी ने जो तंत्र साधना ऐप दी, उसमें केवल और केवल उद्देश्य इतना ही है
मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तंत्र साधना ऐप के इंस्टा पर या फिर यूट्यूब पर। लोग कहते हैं कि ये आप कैसे दे सकते हैं, आप कैसे ऐसे तंत्र की साधनाओं को बांट सकते हैं बिना किसी दीक्षा के। वो पहले तो ये नहीं समझ रहे हैं तंत्र साधना ऐप को डाउनलोड कर कि आपको पहले वहां पर दीक्षा दी जा रही है। स्वामी जी के स्वर में 27 बार मंत्र का उच्चारण करना, मंत्र का श्रवण करना, वो स्वयं दीक्षित होने का मार्ग है जो शास्त्र ने प्रशस्त किया हुआ है। और दूसरा, जो आज के समय में हम एक जप का मशीन आता है जिसके ऊपर हम काउंट कर सकते हैं जप को, कि हमने इतने जप किए, जपा काउंटर। यदि उस मशीन को हम यूज कर रहे हैं जप को काउंट करने के लिए, वास्तव में तो माला का यूज करना चाहिए था, तो फिर आप जप काउंटर को क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि जो एक इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, वो मंत्र जाप का है, जो आपके मुख से हो रहा है, जो आपके मन में हो रहा है, ना कि उस जप काउंटर का। वो जप काउंटर नहीं जप रहा, जप तो आप रहे हैं, आपका मन जप रहा है। वैसे ही तंत्र साधना ऐप एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है आपको परम शक्ति तक पहुंचाने का। तंत्र साधना ऐप साधना नहीं कर रहा, साधना आप कर रहे हैं साधक के तौर पर, और उसका फल भी आपको ही मिलता है। तंत्र साधना ऐप केवल एक माध्यम है आपको महादेवी तक, महाविद्याओं तक पहुंचाने का, उनकी साधना कराने का। क्योंकि आप बाहर जाकर साधना नहीं कर सकते, वो तैयारी तो हम में है नहीं, और कदाचित वो हिम्मत भी नहीं है कि स्मशान में जाकर शव के ऊपर बैठकर साधना कर पाए। तो उल्टा हमें जो मार्ग दिया गया, उस मार्ग पर भरोसा करने की बजाय हम संदेह कर रहे हैं, और ऐसे ऐसी ऐसी चीजें बोलते जा रहे हैं जिसका ना तो कोई सिर है ना तो कोई पैर है। हम दिव्याचार मार्ग को समझ नहीं पा रहे हैं, हम समयाचार मार्ग को समझ नहीं पा रहे हैं, हमने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, और बिना अध्ययन किए हम कूद पड़ रहे हैं ये बोलने के लिए कि ये तो शास्त्रोक्त नहीं है। जिन्होंने वास्तव में दिव्याचार मार्ग का अध्ययन किया है, जिसने वास्तव में समयाचार मार्ग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की है, वो वास्तव में इतना समझ जाएगा कि तंत्र साधना ऐप एक टूल है जो स्वयं साधना नहीं करता, आपको साधना कराता है। जैसे जब काउंटर खुद से जप नहीं करता, जब आपको कराने का काम करता है, आपको मोटिवेशन देता है, वैसे ही तंत्र साधना ऐप पर स्वामी जी के द्वारा दी गई साधनाएं, उनकी स्वयं जागृत साधनाएं आपको साधना के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं, आपके अंतर मन को शुद्ध करने का कार्य करती हैं, और महादेवी तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। सो दैट्स माय आंसर। Yeah, thank you very much for that, Brahmachariji, because that's one of the most common questions that comes in all our customer desk and queries in the WhatsApp, etc. That it's an app and it's a game-like app, and people are doing sadhana on the mobile, and they all wonder, is it really possible to do a sadhana using a mobile? And is it something that is going to be impactful? Is it shastrokta, the right way to do it? And should one even do it, because will they attract something negative, and they are not dikshit? How is that going to happen? These are some of the most common questions that come, Brahmacharya, and you clear them all. And just to go deeper in this aspect, Brahmacharya, uh, they, and also to understand a little bit about Dash Mahavidyas in the Tantra Sadhana app, what does Mahavidya really mean, Brahmacharya? And there are 10 forms of Devis or aspects. What happens if one has a stronger connect with some aspect of the Devi? What happens if one does not know any of the Dash Mahavidyas? So, what is Mahavidya? What about the Dash Mahavidyas? How do we build that connect? And in this context, how can Tantra Sadhana app help? देखिए, बुकिश नॉलेज ये है कि महा यानी कि ग्रेटर, और विद्या यानी कि विस्टम। तो ये बहुत ही एक बुकिश व्याख्या हो गई, डेफिनेशन हो गई महाविद्या की। किंतु जब आप इसमें डीप डाइव करते हैं तब इतना समझते हैं कि जब आप अपने अंतर मन को खोजने के लिए, आप अपने सत्य को खोजने के लिए जिस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो मार्ग हो सकता है कि साधना का हो, मंत्र साधना का हो सकता है, अष्टांग योग का हो सकता है हठ योग का हो सके, या फिर XYZ
जिसे हम अद्वैत कहते हैं, वो भी हो सकता है आपका मार्ग। किंतु मंत्र साधना का ये जो मार्ग है वो कहीं ना कहीं इतना समझना होगा कि ट्राइड एंड टेस्टेड है। उसमें महाविद्या जो है वो सर्वोच्च स्थान पर आती है, द 10 महाविद्यास। अब इसमें भी बहुत ही मजेदार बात यह है कि महाविद्याएं 24 हैं। जैसे कि भगवान विष्णु के अवतार 24 हैं, वैसे ही महाविद्या भी 24 है। किंतु जैसे भगवान विष्णु के मूलतः 10 अवतार माने गए और उनकी पूजा अर्चना की जाती है, वैसे ही यहाँ पर जो 10 महाविद्याएं हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, माँ काली से लेकर माँ कमलात्मिका तक, उनकी साधना को प्रधान तत्व जो है वो माना गया। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक यदि देवी माँ के प्रति आसक्त है, कोई भी साधक यदि देवी माँ को प्राप्त करना चाहता है, माँ के दर्शन करना चाहता है, माँ की कृपा को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे माँ की साधना की दिशा में ही आगे बढ़ना पड़ेगा और देवी माँ की साधनाएं ही करनी पड़ेगी। क्योंकि आप जिस स्वरूप के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं, जिसके प्रति आपको प्रेम होता है, जिस स्वरूप के प्रति आपके मन में समर्पण होता है, यदि आप उनको पुकारते हैं ना, तो वो पुकार आगे जाकर कहीं ना कहीं अश्रुधारा में परिवर्तित हो जाती है। और अश्रुधारा के माध्यम से हृदय जो है वो पवित्र होना शुरू हो जाता है। तो केवल इतना सा लॉजिक है इसके पीछे कि साधक, जिसे देवी माँ अपार प्रिय है, असीम प्रिय है, यदि वो किसी एक स्वरूप को धारण कर ले, चाहे वो सात्विक स्वरूप हो, माँ त्रिपुरा सुंदरी के स्वरूप में, माँ कमलात्मिका के स्वरूप में, या फिर राजसिक स्वरूप हो, जैसे कि माँ बगलामुखी हो गई, माँ अ, भैरवी भी हो गई, कहीं ना कहीं जो विभिन्न हमारे स्वरूप हैं देवी माँ के, भुवनेश्वरी हो गई, तो आप राजसिक साधक होने के नाते उनको पुकार सकते हैं। तामसिक होने के नाते आप माँ काली को पुकार सकते हैं, माँ छिन्नमस्ता को पुकार सकते हैं। तो जो आपका स्वभाव, अपने स्वभाव के हिसाब से जिन देवी के प्रति आपको अपने मन में आसक्ति हो रही है, जिन देवी के प्रति आपको प्रेम भाव का अनुभव हो रहा है, जिन देवी को आप माँ के स्वरूप में देख पा रहे हैं, जिनको आराधने के बाद, जिनकी आराधना करने के बाद आपके आंखों में अश्रुधारा बहना शुरू हो रहा है, यदि उस स्वरूप को आप धारण कर लेते हैं, तो आगे जाकर उस स्वरूप की जो सारी क्वालिटीज हैं, वो जो दैवीय तत्व है, वो धीरे 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 आपके अंतर्मन में, आपके शरीर में बसना शुरू हो जाते हैं। एक साइंटिफिक स्टडी है, मुझे इस समय पर याद आ रहा है, जहां पर कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कुछ दंपत्ति के ऊपर, कुछ कपल्स के ऊपर, और ये पाया कि कुछ कपल्स जो एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वो अपने जीवन की संध्यावस्था में पहुंचने के बाद, अंतिम अवस्था में पहुंचने के बाद एक समान दिखने लगते हैं। उनका चेहरा जो है, उनके हाव भाव, उनका शरीर, उनकी उनकी वाणी, उनका व्यवहार एक समान होने लगता है। और कुछ लोग उनको देखने के बाद ये भी कह सकते हैं कि क्या आप भाई बहन हैं। तो प्रेम जो तत्व है, ये साइंस ने भी साबित किया है कि यदि आप एक समय तक साथ में रहते हैं प्रेम भाव के साथ, तो चाहे आप पति पत्नी ही क्यों ना हो, आप फिर भी एक समान दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर हमारे धर्मशास्त्रों ने, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने भी यही कहा कि देखिए, आप जिनको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं ना, आप जिनको सबसे ज्यादा पुकारेंगे, एक समय आने के बाद आप उनके ही समान होते जाएंगे। उनकी ही वाणी, उनका ही व्यवहार, उनका ही हाव भाव, उनके ही एक्सप्रेशंस, उनकी ही बॉडी लैंग्वेज आपका एक अभिन्न अंग बनती जाएगी। फिर ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि आप साधक हैं या फिर आप वास्तव में साध्य बन चुके हैं। क्या आप वास्तव में एक ध्येय करता या फिर ध्यान करता है, या फिर आप ध्येय बन चुके हैं। देवी माँ का नाम ही है ध्यान ध्यात्री ध्येय रूपा, धर्मा धर्म विवर्जिता। एक समय के बाद यदि ध्यात्र जो है वो ध्यान करता रहे, तो वो ध्येय रूपा बन जाता है, यानी कि अपना इष्ट जो है, अपने इष्ट का आकार धारण करने लगता है, चाहे वो मन से हो, चाहे वो शरीर से हो, चाहे वो वाणी से हो। तो यही महाविद्या का क्रक्स है कि केवल और केवल प्रेम भाव से जिस स्वरूप के प्रति आपको लगाव है, आकर्षण है, समर्पण है, उनको पुकारना, और एक समय आने के बाद
उन्हीं के भाव में विलीन हो जाना, वही बन जाना ही साधना की पराकाष्ठा होती है, और महाविद्या साधना की पराकाष्ठा होती है। Thank you so much, Brahmachari ji. There are a few questions that come forth on the practical aspects of doing the sadhana, Brahmachari ji. So, for example, the question always we get is, if is it even safe to chant the Bij mantras through the app without a physical guru present? You alluded to it a little bit, but please, if you can mention a little bit more. And does Swamiji's guided Bij mantra count as initiation in the app? सो देखिए, पहले तो बीज मंत्र क्या है वो समझना पड़ेगा। जब हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि एक बीज को जमीन में बो दिया जाए, तो कुछ समय के बाद उसमें से एक पौधा निकलेगा, वो अंकुरित होकर कुछ समय के बाद पेड़ बन जाएगा, और वहां से हमें फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहले सिर्फ और सिर्फ फल को तोड़ लेना, और एक बार हमने खा लिया फल, उसमें यदि कोई बीज नहीं है, तो हो सकता है कि दूसरी बार उस फल का आनंद लेने के लिए हमें बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़े। किंतु यदि हमने अपना पेड़ ही बना लिया, यदि हमने अपना खुद का बागीचा ही बना लिया, तो फिर चाहे रोज आप आम खाओ, रोज आप अलग अलग प्रकार के जो फल है उसका सेवन करो, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके पास एक अखूट भंडार हो जाएगा, स्रोत हो जाएंगे आप फल के। तो कुछ मंत्र ऐसे हैं, शाबर मंत्र जैसे हो गए, कि जिसका फल जो है वो आपने एक बार केवल खा लिया, उसके बाद दूसरी बार खाने के लिए फिर से एक बार साधना करनी पड़ेगी। और उसके सामने ऋषि मुनियों ने कहा कि हम एक ऐसा बीज वाला फल जमीन में बो देंगे, जिसके माध्यम से हमें निरंतर फल की प्राप्ति होती रहे। तो जो बीज है, उसे बीज मंत्र का नाम दिया गया। तो बीज मंत्र क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एंग रिंग क्लिंग चामुंडाई विच्चे। तो एंग रिंग और क्लिंग जो है वो बीज है हमारे। यदि बीज के साथ फल को जमीन में बो दिया जाए, या फिर सिर्फ बीज को जमीन में बो दिया जाए, तो अपने आप में वो पर्याप्त होता है पेड़ को उगाने के लिए। वैसे ही यदि बीज मंत्रों को हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारी चेतना में, हमारे चित्त में उसका बीजारोपण कर दिया जाए, तो आगे चलकर एक समय ऐसा आता है जब आप निरंतर जप करते रहो, जब आप निरंतर साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, उसे धूप देते रहो, खाद देते रहो, पानी देते रहो, तो कहीं ना कहीं वो एक समय पर पेड़ बनेगा ही बनेगा। यानी कि आप स्वयं एक अखूट स्रोत हो जाएंगे, सोर्स हो जाएंगे अ, फल का, फ्रूट्स का। तो आपके भीतर उस अध्यात्म रूपी पेड़ को उगाने के लिए, उस पेड़ को वटवृक्ष बनाने के लिए बीज का बीजारोपण किया जाता है बीज मंत्र के स्वरूप में। और बीज मंत्र बेसिकली कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये बीज मंत्र आप उच्चारण नहीं कर सकते, इसका मन में ही करना चाहिए, इसका लाउडली उच्चारण नहीं कर सकते, आ, इस बीज मंत्र को किसी और को बताना नहीं चाहिए। देखिए, हमारे शास्त्रों ने 4 प्रकार से व्याख्यायित किया जप को। आ, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। वैखरी अर्थात बोल बोलकर लाउडली जो आप चांटिंग करते हैं उसे वैखरी कहते हैं। मध्यमा अर्थात जब आप विस्परिंग करते हैं वो मध्यमा होता है। जो पश्यंती है, यानी कि आप मंत्र को अपने मन के नेत्रों से, अपने अंतन मन में पढ़ते हैं, मानसिक जप जिसे कहा जाता है, वो है पश्यंती जपा। और एक है परा, यानी कि फिर आप एक समय तक पहुंचने के बाद एक पड़ाव पर आपको मंत्र जप करने की आवश्यकता नहीं होती, आप स्वयं मंत्रमयी बन जाते हैं। मंत्र जो है वो आपके मन में निरंतर प्रस्फुरित होता रहता है। तो वैसे ही यहाँ पर बीज मंत्र जो है वो आप इन मेथड्स में से किसी भी मेथड के माध्यम से उच्चारण कर सकते हैं, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट कभी नहीं होता। बीज मंत्रों का एकमात्र उद्देश्य है आपके अंतर मन में, आपकी चेतना में एक अध्यात्म रूपी वृक्ष को बो देना। और आप सोचकर देखिए, क्या कोई फल जो आपने स्वयं बोया हुआ है जमीन में, उसका जब वृक्ष बने, क्या वो कभी जहरीला हो सकता है? क्या कभी वो उस फल में ये हो सकता है कि आप उसका सेवन ना कर पाओ?
एक वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर पेड़, एक फल लगे हुए हैं, बहुत सारे फल लगे हुए हैं। यदि उस पेड़ को आपने अच्छे तरीके से उसका पालन पोषण किया है, उसका लालन पालन किया है, उसे अच्छा खाद दिया है, अच्छा पानी दिया है, उसे अच्छे माहौल में आपने उसने उसे पला बड़ा करने के लिए कहीं ना कहीं उसे एक वातावरण प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो वृक्ष आगे चलकर अच्छे से अच्छे फल ही देगा। वैसे ही यदि बीज मंत्र का उच्चारण करते समय आपने यदि अपने अंतर मन में एक भावना केवल इतनी ही रखी है कि मुझे देवी माँ की कृपा प्राप्त करनी है, मुझे बस साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है, और जो प्राप्ति लिखी हो, चाहे सिद्धि की प्राप्ति लिखी हो, चाहे देवी माँ की प्राप्ति लिखी हुई हो, चाहे धन धान्य की प्राप्ति लिखी हुई हो, जो भी प्राप्ति हो, इट इज ओके। बस मुझे इस मार्ग पर चलते रहना है। यदि आपका लक्ष्य ये है, यदि आप मंत्र का उच्चारण किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, या फिर किसी और को आहत करने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो फिर अपने आप में पर्याप्त है, आप एक अच्छा वातावरण ही दे रहे हैं। तो कैसे नुकसान हो सकता है उस बीज मंत्र को, या फिर उस बीज मंत्र के उच्चारण से आपको कैसे नुकसान या हानि पहुंच सकती है? सो दैट्स माय आंसर। Thank you, Brahmacharya. We know you gave us an hour and we have crossed that. So please, if you don't mind, we'll take a little bit of your time, another 5-10 minutes if you're okay. जी। Thank you, Brahmacharya. So one more question that comes to mind, Brahmacharya, and people ask this commonly is like when you're on the path of sadhana, how do you differentiate between experiences that you have, something which is what is the real spiritual experience? What is my imagination? Should I even consider that or not? Because there are so many different types of experiences each sadhak will have. And just if you could throw some light on that, Brahmacharya. इसमें हमेशा मेरा एक ही उत्तर रहता है कि जब कोई स्वप्न, मान लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न मुझे आते हैं कि हमें ये स्वप्न आया, हमें वो स्वप्न आया, मेरा उत्तर ये रहता है कि यदि आप उस स्वप्न में कोई मंत्र प्राप्त हुआ है, या फिर आपको कोई स्वरूप के दर्शन हुए हैं, वेट कीजिए कि वही स्वप्न आपको दूसरी बार आए। वेट कीजिए, वही स्वप्न आपको तीसरी बार आए। यदि कोई भी देवीय स्वरूप आपको कोई संदेशा देना चाहते होंगे, तो केवल एक बार वो संकेत नहीं प्राप्त होगा, वो संकेत बार बार प्राप्त होगा। यदि एक बार कोई संकेत मिल रहा है, या फिर एक बार कोई स्वप्न दिख रहा है, या फिर एक बार आपको किसी दिव्य चीज का अनुभव हो रहा है, कोई दिव्य सुगंध का अनुभव हो रहा है, तो उसे केवल और केवल अपने मन की भ्रमणा के स्वरूप में लीजिए, क्योंकि मन जो है उसका काम ही ये है, आपके अहंकार को पोषित करते रहना, उसका लालन पालन करना, कि देखो मैं कितना बड़ा साधक बन चुका हूं, मुझे ये अनुभव हो रहे हैं। तो मन को उसी समय पर काट देना है कि वास्तव में ये अनुभव था या फिर मेरा भ्रम था। लेट्स टेक इट एज अ भ्रम, हम उसको इल्यूजन का ही नाम देते हैं। यदि ये वास्तविकता में कुछ हुआ होगा, यदि ये सत्य था, तो दूसरी बार भी होगा। यदि मुझे कोई दिव्य सुगंध आई, यदि मुझे कोई स्वप्न आया, यदि मुझे कोई स्वरूप दिखा, यदि मुझे कोई संकेत मिला, यदि वो दूसरी बार मिलेगा, तीसरी बार मिलेगा, तब मैं मान लूंगा कि आप वास्तव में मेरी साधना से प्रसन्न है। अन्यथा हमें साधना के मार्ग पर इन चीजों के ऊपर ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये चीजें साधक को भटकाने का ही काम करती हैं। ये वही बात है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और रास्ते में कुछ कुछ माइलस्टोन्स आ रहे हैं, कुछ कुछ मील के पत्थर आपको दिख रहे हैं कि अब जो मंजिल है वो 10 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। यदि उस मील के पत्थर पर आप रुक गए, उस माइलस्टोन पर आप रुक जाते हैं, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना, आपकी जर्नी वहीं पर खत्म हो जाएगी। यदि आप बस से जा रहे हैं और माइलस्टोन को देखकर वहीं पर उतर जा रहे हैं कि अब तो 5-6 किलोमीटर दूर है, मैं ठहर जाता हूँ यहाँ पर, अभी पहुंच जाऊंगा मैं, तो ऐसे नहीं पहुंचेंगे ना। बस में चल रहे हैं, बस में जा रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मील के पत्थर को देखा आपने, उस माइलस्टोन को देखने के बाद खुश हो जाइए, डेफिनेटली वो आपका अधिकार है, वो आपका जन्म सिद्ध हक है कि एक माइलस्टोन मुझे दिखा, मुझे एक अनुभव हुआ, मुझे एक संकेत प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है कि भगवान मेरे साथ है, जिस दिव्य शक्ति की मैं आराधना कर रहा हूं वो मेरे साथ है। किंतु उस बस से उतर जाना, ये सोचकर इस अहंकार में चलते हुए कि अब तो मैं पहुंच ही गया, अब तो कुछ बाकी ही नहीं रहा, तो वो अहंकार आपकी यात्रा को वहीं खत्म कर देगा, रोक देगा। सो दैट्स ओनली थिंग आई कैन से ऑन दिस टॉपिक।
Thank you so much, Brahmachari ji. That was a very nice analogy. Coming back to the practical aspects of questions that we receive, Brahmachari ji, how, like many sadhaks ask, how to balance sensual life with sadhana? How? What about eating non-veg? What about missing sadhanas on some days because of work or travel? How do we manage sadhana with these aspects, Swamiji? Because Brahmacharya, because sometimes what happens is this becomes the hurdle, thinking that I will have to take a break, thinking that maybe somebody has to eat non-veg or give up non-veg or even the sensual aspect of life. These become hurdles. So how do we what would you say would be the right way to address this, Brahmacharya? कुछ शिष्यों ने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि आप तो देवी माँ के उपासक हैं, माँ काली के बहुत बड़े भक्त हैं, और जीव दया का इतना महत्व है शास्त्रों में, फिर भी आप मछली क्यों खाते हैं? उस समय पर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं जब भोजन करता हूँ, तब मेरा भाव जो है वो अत्यंत सात्विक होना चाहिए। यदि मैं मांसाहार भी कर रहा हूँ, लेकिन सात्विक भाव से कर रहा हूँ, कि मैं जिस अन्न को ग्रहण कर रहा हूँ वो साक्षात देवी माँ की आहुति है, उस महायज्ञ में दी जाने वाली आहुति है, वो हवन सामग्री के स्वरूप में उसे मैं स्वीकार कर रहा हूँ, तो वो सात्विक भाव ही उस मांसाहार को सात्विक बना देता है। और यदि उसी समय पर मैं चाहे शाकाहारी हूँ और शाकाहार कर रहा हूँ, वेजिटेरियन फूड ले रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में नफरत का भाव है, गुस्सा है, क्रोध भरा हुआ है, आक्रोश भरा हुआ है, ईर्ष्या, द्वेष, राग भरा हुआ है, वासना भरी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो शाकाहारी भोजन, वो वेजिटेरियन फूड भी मांसाहारी हो जाता है, तामसिक ही हो जाता है। तो ये आंसर, ये जो उत्तर है वो रामकृष्ण परमहंस ने दिया था। और मेरा यहाँ पर एक ही उत्तर होगा कि इफ द नॉनवेज फूड इज योर नेसेसिटी, देखिए एक होता है लग्जरी, एक होता है नेसेसिटी। यदि आपका जो भोजन है, चाहे वो मांसाहारी क्यों ना हो, यदि वो मांसाहार भोजन आपके लिए आपकी जरूरत है, तो सेवन कीजिए। किंतु यदि आप केवल सुविधा के लिए अन्य पशु को मारकर खा रहे हैं, केवल आप इंद्रियों के सुख के लिए मांसाहार कर रहे हैं, तो आपको जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी ये रोक देना चाहिए। इतनी सी सीधी बात है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। केवल एक चीज को समझ लीजिए, क्या कोई भी भोजन आपके लिए नेसेसिटी है या फिर आपकी लग्जरी है? यदि इतना सा डिफरेंस समझ लेंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा जीवन में निर्णय कर पाना कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जहां तक बात रही ट्रैवलिंग की, तो देखिए मैंने एयरपोर्ट पर भी साधनाएं की हैं, मैंने ट्रेन में अपनी सीट पर लेटे लेटे भी साधना की है, मैंने टैक्सी में भी साधना की है, और जैसा कि मैंने इस सेशन की शुरुआत में कहा आपको, कि मैंने अपनी हेल्थ कंडीशन के चलते बिस्तर पर लेटे लेटे भी साधना की है। मुझे कोई बहाना मिलता नहीं था साधना ना करने का, और ना ही कभी मैंने ढूंढने का प्रयास किया, क्योंकि मुझे केवल इतना ही समझ में आता था कि यदि मैं भोजन ले पा रहा हूँ, यदि मैं पूरे दिन में 6-7 घंटे की नींद पूरी कर रहा हूँ, तो जो मेरे मन का खुराक है, जो मेरे मन का जो आहार है, वो कैसे मैं ना लूं? उसके लिए कैसे मैं कोई बहानेबाजी कर सकता हूँ ना? तो यदि आपके लिए साधना केवल एक दिखावा है, तो आपको अनेक बहाने मिल जाएंगे, अनेक कारण मिल जाएंगे साधना ना करने के। किंतु यदि साधना आपके लिए आपकी जरूरत है, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी बहाना नहीं मिलेगा साधना को खंडित करने का। सो दैट्स माय आंसर। Thank you, Brahmacharya. And the other question that usually comes to us, Brahmacharya, is that why do some people feel nothing despite sincere practice for a long time? What does that mean? And attached to this question is, what are some practical signs to understand that we are progressing on this in the spiritual progress? We are making spiritual progress. तो एक बार स्वामी जी ने ये कथा सुनाई थी
एक व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे। वे निरंतर पूजा अर्चना उपासना करते थे, साधना करते थे। और उनका एक पोता था। वो हमेशा देखता था कि मेरे जो दादाजी हैं वो निरंतर मंदिर में जाकर साधना करते हैं और पूजा अर्चना करते रहते हैं। पूरा जीवन कम से कम उसने 20-25 सालों तक ये देखा। एक दिन बहुत वर्षों के बाद वो अंततः अपने दादा के पास जाता है, ये पूछने के लिए, कहने के लिए कि आप इतने समय से साधना कर रहे हैं, इतने समय से आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, मुझे उसका कोई फायदा तो दिखाई नहीं नहीं दे रहा, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं कि आपको क्या इससे लाभ हुआ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इससे आपको क्या प्राप्ति हुई? तो दादा जो है वो कहते हैं उनसे कि बेटा एक काम करो, मैं जवाब दूंगा, डेफिनेटली दूंगा, लेकिन एक छन्नी जो है वो लेकर आओ, जो एक फिल्टरेशन जैसा एक पात्र होता है जहां पर आप अ, आटे को फिल्टरेट फिल्टर करते हो, उसको आप फिल्टरेशन करते हो, वैसे एक छन्नी लेकर आओ। तो वो जो पोता है उस छन्नी को लेकर आता है, और दादा जो है उसके उस छन्नी को नीचे मिट्टी में इतना ज्यादा रगड़ते हैं, इतना ज्यादा रगड़ देते हैं कि वो पूरी छन्नी जो है वो मिट्टी से भर जाती है। पहले उसमें जो छेद दिख रहे थे, वो छेद बिल्कुल नहीं दिख रहे अब, और पूरी छन्नी जो है वो मिट्टी ही से तरबतर हो जाती है, लदालद हो जाती है, बहुत ही ज्यादा गंदी हो जाती है। अब उसके दादा जो है वो कहते हैं अपने पोते को कि एक काम करो, यहाँ जो पास में नदी है, उस नदी में इस छन्नी को धोकर आ जाओ, और इसमें से पानी भरना है आपको। पानी लेकर आ जाओ, इसमें मुझे पानी भरना है और इसी में आपको लेकर आना है। कोई कप नहीं मिलेगा, कोई प्याला नहीं मिलेगा। वो पोता पहले तो हंसता है कि ये क्या फालतू बात कर रहे हो आप, ये छन्नी है, इसमें अगर मैं पानी भरने की कोशिश भी करूंगा तो भी इससे पानी निकल जाएगा नीचे, इसमें कभी पानी भरा नहीं जा सकता। दादा कहते हैं कि फिर भी जाकर आओ एक बार, बात तो मेरी मानो। पोता जाता है नदी में, छन्नी में पानी भरने की कोशिश करता है, और निरर्थक प्रयासों के बाद अंततः वापस छन्नी लेकर, वैसे ही गंदी वाली छन्नी लेकर वो अपने दादा के पास लौट आता है कि देखा, मैंने आपको कहा था कि इसमें पानी भरना तो संभव है नहीं। दादा ने कहा ठीक है, अगर वास्तव में मेरा आदर करते हो, मेरा सम्मान करते हो, तो एक और बार जाओ, इस बार जरूर इसमें पानी भरेगा। वो फिर से एक बार पोता जो है वो अपने एक हताश मन के साथ नदी पर जाता है कि दादा जो है वो सठिया गए हैं, इनकी बुद्धि जो है वो कुंठित हो चुकी है, ये बूढ़े होने के बाद पगला गए हैं। किंतु फिर भी दादा के प्रति प्रेम था, तो उनकी बात का सम्मान रखने के लिए जाते हैं नदी के पास, और पोता फिर से जो है छन्नी में पानी भरने की कोशिश कर लेता है। निरर्थक प्रयास, फिर से एक बार जाकर दादा के पास पहुंचता है और कहता है कि आप क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपको एक सिंपल, सादा, सीधा प्रश्न पूछा था, आप उसका जवाब देने की बजाय मुझे यहाँ पर काम पर आपने लगा दिया है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तब दादा ने कहा कि मैंने पानी भरने के लिए कहा था आपको, लेकिन आप पानी भर नहीं पाए, कोई बात नहीं, लेकिन जिस मिट्टी वाली, दूषित, गंदी छन्नी को लेकर आप गए थे, उसकी ओर जरा दृष्टिपात करो, नजर करो। और पोता देखता है कि वो छन्नी, जो पहले बहुत ही ज्यादा मैली थी और मिट्टी से भरी हुई थी, अब वो एकदम चकित हो चुकी हैं, एकदम साफ हो चुकी हैं, स्वच्छ हो चुकी हैं, शुद्ध हो चुकी हैं। उसका जो मूल कलर था, मूल जो रंग था उसका, वो वापस लौट आया है। सारी मिट्टी जो है वो नदी में बह गई। तो उस समय पर दादा ने कहा कि चाहे मेरी साधना से मुझे कुछ प्राप्ति हुई हो ना हुई हो, मुझे दर्शन हुए हो ना हुए हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि मैं जैसे जैसे करता गया, वैसे वैसे मेरा अंतर्मन जो है वो शुद्ध होता गया। जैसे ये छन्नी जिस पे मिट्टी लगी हुई थी, ये गंदी थी, इसे धीरे 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 पानी ने साफ कर दिया, पानी के बहाव ने साफ कर दिया। वैसे ही मेरे अंतर्मन को, मेरे हृदय को ईश्वर जो है वो निरंतर शुद्ध कर रहे हैं। तो आई थिंक यही, विक्रम, आपके प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि चाहे कोई अनुभव हो या ना हो, चाहे कोई मन में भाव उत्पन्न हो या ना हो साधना करते समय, मंत्र का उच्चारण करते समय, किंतु
आप चाहे कुछ भी करे या ना करे, देवी माँ को अपना कार्य अच्छे तरीके से करना आता है। तो आपके मन में भाव या फिर भक्ति उत्पन्न नहीं हो रही, किंतु यदि आप कर रहे हैं मंत्र जप, यदि आप साधना करते जा रहे हैं, निश्चित रूप से इतना मानिएगा कि कभी वो साधना व्यर्थ नहीं जाएगी, और अंतर मन को निरंतर शुद्ध ही कर रही होगी। और एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा, चाहे वो 5 साल बाद आए, 5 महीने के बाद आए, 5 दिन के बाद आए, या फिर 50 वर्ष के बाद आए, कि वो जब इतना अंतर्मन शुद्ध हो जाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, कि स्वयं देवी माँ उपस्थित होकर वहां पर निवास करेंगी। तो इतना सा ही तात्पर्य है साधना का। चाहे भाव उत्पन्न हो या ना हो, चरई वेति, चलते रहना ही आपका एकमात्र स्वधर्म होना चाहिए, आपका कर्म होना चाहिए, आपका उत्तरदायित्व होना चाहिए। उसके अतिरिक्त आपके हाथ में कुछ भी नहीं। Thank you very much, Ajib. We are literally in the end of the last two questions. While doing the sadhana through the app digitally, what would Swamiji want us to remember or keep in mind when we are doing the sadhana? एक ही चीज, सेल्फ प्योरिफिकेशन, स्वयं का पवित्रीकरण ही एकमात्र जो है वो संदेश हो सकता है स्वामी जी का। क्योंकि जब देवी माँ की साधना कोई भी साधक करते हैं, तब माँ अंतर्मन को निर्मल कर देती है, पवित्रीकरण का कार्य करती है। एक झाड़ू लग जाता है हृदय कमल के ऊपर। और जब एक बार आसन शुद्ध हो जाए, आसन पवित्र हो जाए, स्थापन जो है वो एकदम स्वच्छ हो जाए, तब जाकर वहां पर भगवान निवास कर पाते हैं। तो देवी माँ की साधना भोग के साथ मोक्ष अर्पण करती है। और इतना ही मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक ही चीज को मन में रखकर चलिए, कि जो भी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, वो एक एक मंत्र सुना जा रहा है, वो प्रत्येक उच्चारण, वो प्रत्येक जप काउंट होते हैं। एक एक जप को मिलाकर ही आप समंदर बना पाएंगे। और उसी समंदर से फिर आप जो खर्च करना चाहते हैं, जो जिस आध्यात्मिक स्रोत बनने के बाद फिर आप उसे जिस भी कार्य में लगाना चाहते हैं, उस ऊर्जा को उसमें आप उपयोग में ले पाएंगे। और यत्रास्ति भोगो न तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो न तत्र भोग, श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ है। भोग है वहां पर मोक्ष नहीं है, मोक्ष है वहां पर भोग नहीं है। किंतु माँ की साधना और माँ की सेवा में तत्पर जो रहते हैं, उनके लिए भोग और मोक्ष दोनों हाथ में होते हैं। तो चाहे आपके मन में कोई भी इच्छा हो, चाहे आप कितने ही अभाव के साथ क्यों ना जी रहे हो, किंतु देवी माँ की साधना कभी आपको खाली हाथ नहीं जाने देगी। चाहे आपके जीवन में आज जरूरतें पूर्ण हो जाए या फिर कल हो, लेकिन होंगी जरूर। ये कहीं ना कहीं देवी साधना का, देवी माँ की कृपा का मूल लक्षण होता है। Thank you very much, Arji. There are different kinds of people who are watching this conversation today, and maybe there are some people who have not started the Tantra Sadhana app at all. There are people who, in the beginning, started, dropped off for a variety of reasons, and there are people who are also who have begun Ma Chinnamastra Sixth World as well. You know, they have been doing the sadhana every single day. So, if you were to just give your suggestion to these three different types of people, what would that be? तीनों को एक चीज मैं जो एक ही वाक्य में कह सकता हूँ कि कीप डूइंग योर साधना, कीप कीप वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि वही मैटर करता है। मुझे स्वामी जी ने एक ही चीज कही थी जब मैं 2023 में पहली बार उनके साथ मेरा वार्तालाप हुआ, इन द मंथ ऑफ नवंबर। उन्होंने कहा, बेटा, अंत में सब कुछ व्यर्थ है। जो कुछ भी कमाएंगे, जो कुछ भी खाएंगे, जो कुछ भी प्राप्त करेंगे भौतिक स्वरूप में, बेटा वो सब कुछ अंत हो जाएगा, नाश हो जाएगा उसका। एक ही चीज बचेगी, आपकी देवी माँ के प्रति जो भक्ति है, वो एकमात्र चीज जो है, वो एकमात्र वस्तु शाश्वत है। उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके साथ जाएगा। अंत में सब कुछ नष्ट ही हो जाएगा। तो जो तीनों कैटेगरी के साधक आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा जो मुझे स्वामी जी ने कहा था, ट्रस्ट मी, अंत में कुछ भी मैटर नहीं करता।
सिर्फ देवी माँ के अलावा। आपकी भक्ति, आपका समर्पण ही आपको आगे लेकर जाएगा। इसके अलावा आप चाहे परिवार में किसी भी किन्हें भी कितना ही प्रेम क्यों ना करते हो, किसी भी वस्तु के प्रति आपका कितना ही प्रेम ना हो, वो सभी चीजें, वो सभी व्यक्ति, वो सभी मनुष्य एक दिन आने पर उनका नाश हो जाएगा, किंतु आपकी भक्ति जो है वो चीरकाल तक अमर रहेगी। Thank you so much, Brahmachari ji. And it appears there are many more questions that sadhaks have put out. I think we will need, multiple sessions of this Q&A and conversation to really answer all of them. But I think this is fantastic, and really thanks a lot for taking the time out and guiding us. I think the hope of conducting such a session is to ensure that somewhere whatever stops we have in performing the sadhana, so whatever hurdles that are there gets removed, so that we can become more aggressive, we can start the practice or resume the practice and go deeper. Definitely it your everything that you said today impacted me a lot personally, and I'm sure many sadhaks as well, Brahmacharji. And also thanks to all the sadhaks who are who patiently use the app in spite of, there are some issues that they face, and yet they write to us, they use the app, and that definitely means a lot to all of us as well. And they all show up for the conversation, they write their questions. So if at all some of the questions you have put up today are unanswered, please write to us, serve@tantrasadhana.app. We will ensure that every single question we will respond, and pipeline those questions for Brahmachari ji when we can get his time the next time, because अभी पिक्चर बाकी है. This is just first part, or one of the parts of the conversation series that we have had. We will request Brahmachari ji for more in the coming days. So please do use the app. Please do send us the questions. And if there is anything stopping you from your sadhana, let us know, and we'll try our best to unblock you. And Brahmachari ji, thank you so much for being an inspiration and for patiently answering all our questions. And And thank you, Vikram. You are a wonderful host, as I always say. बहुत ही आनंद आता है ये पर्टिकुलर सेशन करने में, क्योंकि एक वेवलेंथ जो मैच करती है, कई बार वो कम देखा जाता है बाहर के सिनेरियो में, पर इट्स ऑलवेज माय प्लेजर टू बी हियर। एंड आई विश ऑल द साधक्स कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से साधना करें। एंड ट्रस्ट मी, तंत्र साधना ऐप is a wonderful platform to connect with the divine energy। तो जितना हो सके उतना लाभ लीजिए, क्योंकि ये जो समय खंड में हम जी रहे हैं, ये जो साधनाएं स्वामी जी के द्वारा दी गई हैं, ये कोई सामान्य साधनाएं नहीं है, और इन्हें करने के लिए कृपा भी उतनी ही उच्च कोटि की चाहिए। तो यदि आप ये साधना कर पा रहे हैं, या फिर करना चाहते हैं, या फिर शुरू करेंगे अभी, ये केवल और केवल देवी कृपा से ही संभव हो सकता है। तो आप चाहे तंत्र साधना ऐप में, उस जर्नी में आप कहीं पर भी हैं, डेफिनेटली यू आर अ ब्लेस्ड सोल। दैट्स व्हाई यू आर देयर, एंड दैट्स व्हाई यू कैन डू sadhana over there. So that's my only message. And thank you so much, Vikram. Again, I'm truly, truly grateful to you for all the sessions, all the work you are doing, for all the seva you are doing for Sanatan Dharma. And I would like to conclude it with Purnahuti mantra. thank you, Brahmacharji. Please go ahead. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate। Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat। Thank you. Om Shri Matre Namaha। Thank you. Jai Shri. Thank you very much, everybody. Jai Shri, thank you for your time. Please let us know if you have any questions or queries, and we will again catch up with you very, very soon. Have a blissful weekend, and see you all very soon. Bye bye. Jai Shri.